from batch wo, BTech 1 or 2 or masters, they all are doing wonderful in cyber security field, because cyber security is a very vast canvas now, and India is the digital India now, and now it is very important for us to understand the importance of cyber security. It is not only talking about the crimes which are happening, and since morning, I hope you must have heard all the eminent speakers who have given you a lot of knowledge on the current situation. So I'm not sure what all you have covered, and I don't want to sound duplicate, but still I will try to give you a perspective to understand how to handle these issues. So, just to give you a perspective, I have a one screenshot which is very interesting. So, India has lost 11,300 crores due to cyber fraud in the first 9 months of 2024. This was the data of I4C, which was printed in the newspaper. The three biggest culprits were stock trading scams, investment scams, and digital arrest. And the amount was roaring high to 11,330 crores, and the total complaints faced were 12 lakh. We have seen major data breaches into 2024. We have seen cyber warfare attacks in 2024. So now what is the onus? What is the responsibility of you guys who are the so-called engineers and the innovators and creators of the future? So one of you, most of you will be working in startups, most of you will be contributing to cyber security, most of you will be developing applications and technology. So what is your onus? And most of you will be attached to the artificial intelligence and machine learning which is happening. So just to give you a positive example, the Mahakumbh which is happening in Uttar Pradesh is totally been geared up by artificial intelligence. Artificial intelligence is used in the thousands of cameras to identify the crowd, to manage the crowd, and to manage the crime. Technologies like facial detections and drones are being used. Technology like RFID tracking is being used. So we have thousands of positive roles of technology. But हमें बुरा जब लगता है जब बैंगलोर में मेरे पास अभी एक केस आता है where a gentleman in Bangalore lost 95 lakh rupees in a trading scam because he watched a deep fake video of Narayan Murthy and Mukesh Ambani. It feels very sad when we hear that a boat, a new startup called Boat, they suffered a data breach and a personal data of 7.5 million users was leaked on dark web. सो नाउ द चैलेंज फॉर यू गाइज इज कि जो तुम क्रिएट करते हो ना टेक्नोलॉजी, यू क्रिएट अ एप्लीकेशन, यू ब्रेक अ स्टार्टअप, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन साइबर सिक्योरिटी. आपको ऐसी कोडिंग करनी है, और मैं ना इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आई वांट सिक्योरिटी बाय डिजाइन नाउ, एंड आई कैन ओनली एक्सपेक्ट सिक्योरिटी बाय डिजाइन when the student who is working in technology understands hacking, अंडरस्टैंड्स साइबर सिक्योरिटी, तब तो वो मेरे लिए वो कर सकता है, व्हाट डू यू कॉल इट, सिक्योरिटी बाय डिजाइन. अभी तक क्या हो रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जाती हैं और हम अखबार में पढ़ के खुश हो जाते हैं कि अभी पता चला बिग बास्केट का कितना 20 मिलियन डेटा चोरी हो गया. अब ये इसलिए चोरी हुआ, देयर वाज अ वल्नरेबिलिटी इन द सर्वर, यस, देयर वाज अ वल्नरेबिलिटी इन द डेटाबेस, यस, रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि साइबर हाइजीन अच्छी नहीं है. तो क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करें इसी एआई से जो अटैक्स को पहले से ही रोक दे, जो डेटा को पहले से ही प्रोटेक्ट करे. और अब हमें एक और चीज बहुत परेशान कर रही है जिस पे पूरी वर्ल्ड डिबेट कर रही है, खास तौर से एआई में, कि कहीं एआई ऐसा मास्टर ना बन जाए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को खतरा हो जाए. तो आई नीड एथिक्स बाय डिजाइन. इतने केसेस आप लोगों ने डीप फेक के सुने, और बड़ा दुख होता है. अभी जब रश्मिका मंडाना का डीप फेक वीडियो बना था, तो वो आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमारी दिल्ली पुलिस ने खोला था. वो एक इंजीनियर को पकड़ के लाए थे आंध्र प्रदेश गुंटूर से. दिस इंजीनियर वॉज अरेस्टेड, और जब उसका इंटेरोगेशन हुआ तो उसने बताया वो इसलिए कर रहा था ये क्राइम बिकॉज ही वांटेड टू बूस्ट हिज फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम हैंडल. और इस बच्चे को दो दो अवार्ड्स मिले हुए थे डिजिटल मार्केटिंग में. इसने दो दो सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे थे. तो बच्चों, आज ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है
कि हम इसी टेक्नोलॉजी के साथ अपने एथिक्स को कितना स्ट्रांग रखें। और एक बड़ा शॉक जब लगता है जब बैंगलोर के अंदर एक टेकी 39 इयर्स ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड का शिकार हो जाता है और 11 करोड़ 80 लाख रुपए दे देता है। तो these challenges what the country is facing, we really need to redefine our education and softwares. Ransomware is going to be the biggest challenge in 2025. It was always and it will be. AI को मेलवेयर से अटैक करके एल्गोरिथम्स को चेंज करना, ये भी एक चैलेंज होने वाला है। डोंट माइंड माय स्पेलिंग्स, और एल्गो लिख देता हूं मैं। और बच्चों एक और बड़ा चैलेंज होने वाला है ड्रोन्स अटैक और आईओटी अटैक्स और ओटी अटैक्स। तो आज की तारीख में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी में आपका क्या होता है वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, आप जैसे टेकीज जो आज इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी एंड एथिक्स बाय डिजाइन। स्कोप इज अमेंस। अभी अभी भारत सरकार ने आप लोगों के लिए ये इनोवेट इंडिया करके एक साइबर सिक्योरिटी चैलेंज लॉन्च किया है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टुडे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। mygov.gov.in पे जाना, और हमने अभी इस पे एक साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज दिया है। और आप इसे देखोगे ग्रैंड चैलेंज को, तो हमने इसमें आप लोगों से क्या कहा है, ये फरवरी में होगा। इसमें बहुत अच्छा प्राइज मनी है बच्चों के लिए, आप अपनी टीम्स बना सकते हो। आप इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ लोगे ना, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टुडे। हो गए भाई। So you are getting mute again. Muting me. I think you are not able to manage the meeting, Shubham. I am not muting myself. Somebody else is muting me. And if you don't want to listen, let me know. I am very busy right now and I don't have time for all this. No, So sir, no, sir. Extremely sorry from our part, sir. Actually, if you are even we are not also not understanding. interested, No, sir, no, sir. then Actually, I'm not forcing anybody to listen to me. बिकॉज those who are बच्चों ये सब्जेक्ट आपके लिए ना फ्यूचर डिसाइड करेगा, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ स्कोप इन दिस एंड वी पीपल हैव स्पेंट 30 years इन द इंडस्ट्री। वी कैन नॉट teach you, but we can become very good mentors for you. We can always guide you on what is good and what is bad and what how you can make your amazing career shine. Because see, these are the challenges we are facing right now. So if you look at these problem statements and you participate in such challenges, you are definitely going to define your career in a very positive sense. Today, cybersecurity is important because everything is digital. There is nothing which is offline today. And India is the first country to be very ambitiously doing Digital India, where UPI is a huge success, Aadhaar is a huge success, and all the government services are online today. You can get your passport online. You can have a DigiLocker in your phone. With the help of DigiLocker, you can carry all your data online with you. But all this requires technology protection and intervention. एंड लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो, जहां एक छोटी सी .apk फाइल आज एक मेलवेयर बन के पूरा का पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मतलब योर अभी एक छोटा सा केस आया था बैंक का, जिसके अंदर ये देखिए, नैनीताल बैंक का केस था। दे लॉस्ट 16.71 crores and it was siphoned off by the hacker using the credentials of the bank manager login detail। एक छोटी सी एपीके फाइल से, एक एपीके फाइल एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल से इसने हैकर ने भेजी, और जैसी इंस्टॉल करी, इस फाइल में देयर वर ट्रोजन्स which were stealing SMS, which were stealing bank details. There were total 25 trojans in it. So today we need solutions where we can identify a fake application and APIs. So when we talk of APIs and securities in these websites and application,
द बिगेस्ट चैलेंज इज द प्रोग्रामर्स हु आर वर्किंग ऑन इट, जो बच्चे उस पे काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं को इसके बारे में नहीं पता होगा तो वो हमारी मदद कैसे कर पाएंगे। तो आई थिंक I don't know what all topics have been covered since morning, as I was totally disconnected. I am in Mumbai right now and I was very busy. So I'm not aware कि आप लोगों ने क्या क्या सुन लिया अभी तक के स्पीकर्स से। बट मैं यहाँ पे पॉज लेके आप लोगों के हाथ में देता हूँ। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू आस्क मी from my profile. See, let me tell you, I've worked on various crimes and various cases. I have investigated a lot of crimes where I have worked on digital footprints and forensics. And I have also been very forward in handling incidents response. So if you, any one of you are looking forward to any specific question from my side, I would love to answer that. Yes, Bipul, if you can unmute and ask me. And also Priyanka want to ask something. You have raised your hand. Vipul Chaudhary. Can we unmute Vipul? Yes, please. Yes, you can ask. मीटिंग से निकाल दिया था। Or you can put your question in the chat if you're not able to unmute. Is there any community your side where we can learn and implement? Harshit, so there are a lot of communities we have built. There's an organization which I'm working with, FCRF, that is Future Crime Research Foundation. I hope you have met Triveni sir recently. And Triveni sir is also there with this organization. It's incubated by IIT Kanpur, and we are doing a lot of work there. I do a lot of internships with the police and with FCRF, in which a lot of students come and join our community, and they keep on learning as well as they keep on working with us. So we give you live case studies and live projects to work. And the best part of these association is you can also get a LOR from us, which can help you in your future career as well. So yes, Harshit, you can be a part of these communities. Manas, how can we minimize digital footprint as much as possible? So recently you must have heard that Apple was fined. Apple was fined $95 million just because they were secretly listening to your recorded conversation. तो मिनिमाइज करने के लिए अगर यू आर यूजिंग अ एप्पल फोन, सबसे पहले अपना ट्रैकिंग ऑफ कर दो। इफ यू आर यूजिंग अ एंड्रॉइड फोन, अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट कर दो वहां से जाके सेटिंग्स में। परमिशंस कंट्रोल करो, कंट्रोल योर परमिशंस, यूज अ गुड वीपीएन। In somebody is unmuted, can you mute them please? The back end, there's a lot of noise coming in. Thank you. So, Manas, you can use a good VPN, you can use an incognito mode, so that all these methods you can use to minimize your digital footprints. But making them zero is not possible. और एक और smart चीज use करो, whenever you are using third party apps, don't use your primary ID for that. Always use your secondary email ID. The primary ID should be used very rarely and very intelligently on all these applications. My friend, social media was hacked, got after clicking a suspicious link, and the same link to all the friends and contact. How do we provide it? So look at this. I'll show you my example. It happened with me also. So this question was asked by Shivam. Shivam, ये देखिए, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरे इंस्टाग्राम में रक्षित टंडन के नाम से है, ये रक्षित डॉट टंडन के नाम से। और एक हैकर का मेल आया मेरे पास याहू पे, एंड दिस मेल वाज समथिंग लाइक दिस। ये था, हेलो रक्षित डॉट टंडन, हमें आपकी कंप्लेंट आई है, योर अकाउंट इज इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट। अगर आपने अपील नहीं किया तो हम आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देंगे। बकायदा इंस्टाग्राम का लोगो बना था, मैनिलो पार्क ये सब लिखा था। मैंने इस लिंक को ना सिर्फ चेक किया, मैंने कहा ये लिंक स्कैन करके देखूं कैसा है। तो पता चला जब मैंने इस लिंक को स्कैन किया, इसके अंदर फिशिंग भी थी और मलेशियस भी था, इसमें मैलवेयर भी था। तो आज की तारीख में यू हैव टू यूज जीरो ट्रस्ट। आजकल सबसे ज्यादा ये वाला अटैक हो रहा है, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक। अभी अभी सुबह मेरे पास एक केस आया, एक लेडी टीचर के पास उसकी मदर का मैसेज आया
कि मैंने तुम्हें एक कोड भेजा है वो बता दो। वो कोड उसके व्हाट्सएप का कोड था। चूंकि उसकी मम्मी का मैसेज था, उन्होंने बता दिया। उस टीचर का व्हाट्सएप हैक हो गया। उसका हैक हुआ, उससे दूसरे टीचर का हैक हो गया, उस टीचर से तीसरे टीचर का हैक हो गया। इसको हम हैक बॉट कहते हैं। और ये हैक बॉट ने वो कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं बॉट फ्लू। इसका नाम रखा है हमने फ्लू बॉट। फ्लू बॉट मतलब जैसे आजकल फ्लू, अगर मेरे को फ्लू है, वायरल फ्लू, अगर मैं छींकूंगा तो आपको भी हो जाएगा, आप छींकोगे किसी और को हो जाएगा। तो आजकल हैकर्स ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक यूज कर रहे हैं। पहले आपको हैक करेंगे, आपके इंस्टाग्राम पे फिर वो फेक स्टोरीज भी डालते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर आप भी फंसते हैं और आपके फ्रेंड्स भी फंसते हैं। तो बचने का तो एक ही तरीका है कि आजकल MFA यूज करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करो। दूसरा, आप लोग जीरो ट्रस्ट, किसी भी लिंक या APK को क्लिक नहीं करना है। तो ये सब करना पड़ेगा, तब जाके इन चीजों से आप बच सकते हो। लिंक्डइन पे भी बहुत हो रहा है। मैंने यही तो सिखाया पवन, कि अगर आप www वायरस टोटल वाली वेबसाइट है, ये ओपन सोर्स है, आप इससे लिंक को स्कैन करके देख सकते हो। अगर वो ग्रीन कलर से कहता है ओके तो मतलब ओके है, वरना वो फेक है। हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल फोरेंसिक। सो प्री रिक्विजिशन तो हर्ष यही होते हैं कि यू हैव टू बी very inquisitive and you should have a lot of questions in your mind. So for forensics, you have to go to the deep things of it. You should have good patience. और टेक्नोलॉजिकली हर चीज को डीप रूटेड समझो, कि अगर मैंने एक ऐप अपने फोन पे डाउनलोड किया, तो उस ऐप को डाउनलोड करने से क्या हुआ मेरे फोन में, कौन सी फाइल चेंज हुई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। जब तक आप ये सारे इम्पैक्ट्स नहीं समझोगे, आपको फॉरेंसिक समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फॉरेंसिक होता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में you have to find evidence in the root, inside the computer, inside the file, and that is where a good forensic expert is. So अब तो भारत सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बना दी है बहुत अच्छी। और आप प्लीज, फॉरेंसिक इज अमेजिंग बूमिंग करियर। इसका एक बहुत डिटेल्ड रोड मैप है, वो कभी हम फुर्सत में आप लोगों से बात करेंगे 1 to 1, तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस सिर्फ मैं अपने आप से अपने लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो इट हैज टू हैव अ 1 to 1 कनेक्ट टू गेट इनटू द डिटेल्स, कि भाई मोबाइल फोरेंसिक्स, फाइल फोरेंसिक्स, ड्रोन फोरेंसिक्स, IoT फोरेंसिक, क्लाउड फोरेंसिक्स, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। और आपको पता है, मिस्टर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कि अब जितने भी 5 years के क्राइम हुआ करेंगे, उसमें एक फोरेंसिक एक्सपर्ट टैग होना बहुत जरूरी है। वी आर गेटिंग फ्रेशर जॉब मेल्स। अजमीरा, बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, हमारे यहाँ एक नई बीमारी शुरू हो गई है, साइबर स्लेवरी। मेरे 5,000 बच्चों को जबरदस्ती उठा के ले गए ट्रैफिकिंग करके, और उन लोगों से साइबर क्राइम करा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, कंबोडिया में, म्यांमार में और लाओस में, और इन सबको IT की नौकरी के लालच में ले गए थे। तो इफ यू आर एंटरिंग द जॉब मार्केट, प्लीज बी वेरी केयरफुल, चेक ऑल द बैकग्राउंड। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे साइबर स्टॉकिंग बहुत करते हो, अगर किसी की डिटेल निकालनी हो, कौन कहाँ जा रहा है, कब फोटो डाल रहा है, अगर वही दिमाग तुम अपनी नौकरी ढूंढने में लगाओगे तो तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो बच्चों, आजकल ये जॉब के नाम पे बहुत स्कैम हो रहे हैं। मेरे मासूम बच्चे, 5,000 बच्चे कंबोडिया में फंसे हुए हैं, और इनसे अभी भारत सरकार 250 बच्चों को रेस्क्यू करके लाई है। 250 students were rescued. So, Azmira, if you are looking for a job, you have to be very smart. People like us, Triveni sir, Amit, these all are there to guide you and mentor you. आपको कभी भी कुछ चाहिए, you connect with us. We can connect on LinkedIn, Instagram. Send me the link. मुझसे पूछ लो वो जॉब सही है या नहीं। कैन यू एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ eSIM फॉर सिक्योरिटी। यार, eSIM का बेनिफिट एक तो ये है कि वो सिम कभी खराब नहीं होती है। दूसरा, eSIM
कोई फोन में से निकाल नहीं सकता अगर आपका फोन चोरी होता है। आजकल क्या देखा जा रहा है इंडिया में, अगर कोई फोन छीन ले या चोरी कर ले तो वो फोन तो खुलता नहीं है, सबसे पहले सिम निकाल के किसी दूसरे फोन में खोल के बैंकों में घुसने की कोशिश करता है। तो ई सिम विल नेवर कम आउट, एन एम्बेडेड सिम कैन नॉट कम आउट ऑफ योर फोन, और आप उसे इजीली बॉक करा के दूसरे फोन में ट्रांसफर करा सकते हो। और मेरी अपनी जो पहली चिप थी, चिप वाली सिम 3 बार खराब हो चुकी है, और ऐसे ऐसे टाइम पे धोखा दिया है कि मेरा काम रुक गया। आई वॉज वर्किंग और सडनली मेरा सिम खराब हो गया। आई वेंट टू एयरटेल, उन्होंने नया सिम दिया, 4 घंटे लगे एक्टिवेट होने में, 24 घंटे लगे मैसेज आने में। तो यस हर्ष, यू सेंड मी अ मैसेज अगेन, मिस हो गया होगा हर्ष। वो मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जो ऊपर ऊपर दिखते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। आज अभी एक हेलो कर देना इंस्टाग्राम पे, शाम तक जवाब आ जाएगा। एआई का यूज, बिल्कुल एआई अपने अच्छे के लिए यूज करो, गलत नहीं। और एआई से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को खराब मत करो। अब अगर हर काम और कोडिंग वोडिंग सब तुम एआई से करा लोगे तो देखो भैया, गूगल फेसबुक बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रोग्रामर्स को निकाल दिया, वो सब अब जेनरेटिव एआई से प्रोग्राम बना रहे हैं। अब बताओ, मैं उस दिन मुझे एक मैक्रो लिखना था और आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग मैक्रोज। मेरे को एक छोटा सा बैंकिंग एप्लीकेशन था एक्सेल का, उसमें मुझे वर्ड्स को, सॉरी नंबर्स को वर्ड में बदलना था। तो मैंने चैट जीपीटी से जाके कह दिया, मैंने राइट अ कोड टू कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड्स इन एक्सेल। उसने 30 सेकंड के अंदर 100 लाइन का कोड लिख दिया, ये देखो। और उसने फॉर्मूला भी बता दिया कि वीबीए एडिटर में जाओ, इंसर्ट करो और ये वीबीए कोड डाल दो। अब अगर ये कोड मैंने खुद लिखा होता तो आई वुड हैव लर्नड वेरिएबल्स, आई वुड हैव लर्नड एरर्स, एंड आई वुड हैव लर्नड द लॉजिक ऑफ कोडिंग। बट चूंकि ये मेरा दिमाग चला ही नहीं और ये एआई ने लिख दिया, तो अगर मेरा दिमाग चलेगा ही नहीं तो हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। तो हमें जो चीज यूज नहीं करते हैं बहुत दिनों तक, वो खराब हो जाती है। तो मेक एआई अ वेरी गुड स्लेव, बट डोंट लेट एआई बिकम योर मास्टर। So that is the best way of using AI. So use it where you can use improve your efficiency and productivity, but don't let AI take over your mind. तो बच्चों यही एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बाकी एआई इज द फ्यूचर नो डाउट। और मुझे एआई से बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, मैं नेगेटिव को ध्यान नहीं देता हूँ। अभी ये देखो, बेंगलोर के अंदर एक अंकिल के 95 लाख रुपीस चले गए क्योंकि वो नारायण मूर्ति और मुकेश अंबानी के डीप फेक वीडियो से इंस्पायर हो गए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियंका चोपड़ा के इस वीडियो से इंस्पायर हो गए जिसमें वो कह रही हैं कि अब दिस इज अ डीप फेक वीडियो ऑफ प्रियंका जिसमें प्रियंका कह रही है कि 10,000 रुपए लगाओ 3 लाख रुपए कमाओ। ये रील इतनी वायरल हुई कि मेरे गुड़गांव का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना इम्प्रेस हो गया कि इस बेचारे के 42 लाख रुपीस चले गए। तो भैया ये यूज नहीं होना चाहिए एआई का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लॉस 42 लैक्स, वो घर बैठे पैसा कमा रहा था, टेलीग्राम ज्वाइन किया था उसने, 10,000 को 3 लाख में बदलने चला था। तो भाई एआई का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। एआई से वॉइस क्लोनिंग, ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तुम लोगों को आज इसी को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। अगर आज तुम लोग हमारी पुलिस के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन बना के दो जो रियल टाइम में ये पहचान ले कि ये वीडियो फेक है, रियल है, ये ऐप फेक है, रियल है, ये आवाज क्लोन्ड है या रियल है, तो आप सोचो आपने कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर ली। There is so much of money around this. So I hope you understand my point. And with this, how can I get a job abroad? So India is having a lot of good opportunities, Harsh. But yes, if you are looking to jobs in abroad, they are looking for offensive and defensive hackers. They are looking at secure designers. So they are looking at designers, software designers who know hacking. So these are some good opportunities which you are getting. I can
give you my LinkedIn account. You can follow me on LinkedIn and Instagram. This is my LinkedIn, and I can pin this, and you can. All right, the host of the meeting can pin it, and this is my Instagram handle. It's called Rakshit.Tandon. So there are some opportunities definitely coming up abroad. बट मैं एक बात बता दूं, सारे जितने इंजीनियर सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम 1 2nd ईयर हो, 4th ईयर हो, फाइनल हो, do lot of internships, get opportunities where you can learn. Don't look at the incentive part, look at where you are getting to learn, because cyber security needs a lot of learning today. हमारी इंजीनियरिंग में आज भी हमें वही पढ़ा रहे हैं, वो C++ और डेटा स्ट्रक्चर्स और फिबोनाची सीरीज बना बना के हम यहाँ तक आ गए, और हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर ली और हो गया साइबर सिक्योरिटी। ऐसे नहीं होता है बच्चों। I need to get into, you need to, if you want to be a good swimmer, you have to dive into it. And for diving, college is not giving you that opportunity because hacking is a crime. So you can work as an intern, as a bug bounty hunter, look for opportunities where you are getting good internships, and I think that will define a good path. अब जैसे मैं, I'm not talking, नहीं नहीं हर्षित, ये गलत है। एवरीबडी इज नॉट लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर knowledgeable person. They know. Don't write in your resume I know C++, Java, Oracle, Among Us, सब लिख दो तुम उसमें। नहीं, तुम ये लिखो आई हैव द स्किल। एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी लाइन है जो करके दिखानी पड़ती है। अब तुमने कहा मैं कर सकता हूं, मैंने कहा ये रहा मेरा सर्वर, मुझे जल्दी से बताओ उसमें वल्नरेबिलिटी कौन सी है। अब अगर तुम बता पाए, यू आर इन, और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम कितने ही सर्टिफिकेट दिखा दो मुझे, आई एम एथिकल हैकर, आई एम ISSP CSSP, नथिंग विल काउंट। So my point is make your learning experience practical. मेरी अभी एक पुलिस की इंटर्नशिप आ रही है बच्चों, मैं 11 साल से करा रहा हूँ, और ये इंटर्नशिप अगर आप देखोगे ना, आपको यूट्यूब पे इसके दर्शन हो जाएंगे। आप वो वहां पे बस लिख देना गुड़गांव पुलिस साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप, गुड़गांव पुलिस साइबर, आपको हर साल के वीडियोस मिल जाएंगे। आप कोई सा भी साल उठा के देख लेना, आपको समझ में आएगा हम लोग क्या क्या कराते हैं इस इंटर्नशिप में। पता नहीं कितने तो वीडियोस बन जाते हैं आजकल। जैसे अब ये वीडियो है, अब इस इंटर्नशिप में आपको दिखाई देगा हम लोग क्या करते हैं। हम आपको कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में बंद कर देते हैं, वहां पे हम होते हैं, रक्षित टंडन साहब होते हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम बुला के लाते हैं, CBI से, इंडियन आर्मी से, और ये आप पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, ये लोग आपको सिखाते हैं। सो यू हैव इंटरएक्टिव सेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लोग आते हैं, ठीक है, त्रिवेणी सर जैसे लोग आते हैं, फिर संतोष सर जैसे D3 हैकर्स, so many people will come and train you, and you go to police stations, you have a live experience, you work on projects. So I think that is the best way to give you a 360-degree exposure on cyber security. So chalo bachcho, thank you. How does cyber security job need CPI, or they hires on skill? They do hire you on skill. And Shivam, these days, all I am working on so many advisories of so many companies. We do live examinations, we give you live case studies, we make you participate in hackathons. We want to see the result, and the result we are selecting you. So chalo bachcho, thank you so much for listening. I'm sorry I have to rush now, and we'll meet again, and hopefully we'll spend more time with you. So once again, thank you CDAC for organizing this, and thank you for getting me here, and sorry for being late. And how to apply? All my internships are public, Shivam. You will see the advertisement coming on all the social medias. उसके लिए ना मुझे फॉलो कर लेना, वो मोए मोए और टमटम को फॉलो मत करना, मेरे को जी फॉलो करना। तो तुम्हें थैंक यू बहुत सर कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच, थैंक नमस्कार, यू सर जय थैंक हिंद। यू Thank you, सो थैंक यू, मच थैंक यू थैंक दीपांशु, यू थैंक यू अगेन सो सर मच, थैंक यू, मैं गॉड आप ब्लेस सभी यू। को बता देना चाहता हूँ जी कि मुझे भी साइबर सिक्योरिटी में लॉन्च कराने में सर का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो सर जिस इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप,
मैं भी सर का ही इंटर्न था, कमिश्नर साहब के राव से। तो इंट्रोड्यूस मुझे कराने के लिए सर ने ही कराया इंट्रोड्यूस इस डोमेन में। आज मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि आपने मेरा सेशन भी सुना था, MIT में वर्किंग हूँ, तो इसीलिए बहुत मैं बढ़िया। अपने मेंटोर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करता हूँ। आप सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर को फॉलो करें और सर को अपने नेटवर्क में ज्वाइन कराएं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सर और सर जैसे बाकी लोगों से जुड़े रहें। ठीक इसी तरीके से सर आप लोगों की लाइफ और करियर को भी चेंज करा देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर सीडेक टीम, एंड थैंक यू फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर। आप Thank सभी लोगों you. को भी God थैंक यू। bless you. Thank you. Bye थैंक यू सर। bye.